हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ केमिस्ट्री। पिछले पीरियड में हमने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था, जो यूनिट नंबर 1 होता है। उस यूनिट में हमने, उस लेक्चर में हमने ये पार्ट स्टडी किया था। फॉर सॉलिड, व्हाट इज सॉलिड? इज अ स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट ज्योमेट्री, डेफिनेट मास। इट इज कॉल्ड अ सॉलिड स्टेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, crystalline solid and amorphous solid. What is crystalline solid? It is a solid in which constituent particles are arranged in a definite repeating pattern. That is called as crystalline solid. And if there is irregular pattern, it is called as amorphous solid. Further, we have seen the types of crystalline solid. There are 4 types of crystalline solid: ionic solid, covalent solid, molecular solid, and metallic solid, depending on their constituent particles. After that, we have seen a new part, that is crystal lattice. It is a regular 3-dimensional arrangement of constituent particle. It is called as crystal lattice. And the smallest unit of crystal lattice, it is called as unit cell. That unit cell, it has 2 parameters, some axis and some angle. There are 3 axes, A, B and C, and 3 angle, in between them alpha, beta and gamma. Further, then types of unit cell. There are total 4 types of unit cell depending on the arrangement of constituent particles. First type of unit cell, it is called as primitive or simple unit cell, SC. Second type of unit cell, body centered unit cell. Third one is face centered unit cell, and the fourth one is base or end centered unit cell. आज हम यही फिर से टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को डिटेल में स्टडी करेंगे। ये पहले लेक्चर में हमने फिनिश किया था। Now today's second lecture is again study types of unit cell. So types of unit cell. First type of unit cell, it is primitive or simple. Primitive or simple unit cell. In short इसको SC लिखते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? Primitive or simple unit cell, that is it is a cell in which constituent particle, they are occupied by 8 atoms. All these constituent particles, there are 8 corners, 8 corners होते हैं, and each corner it is occupied by particles. Particles, it may be atom, it may be ion, or it may be molecules. So if there are 8 particles at the 8 corners of the unit cell, then it is called as primitive or simple unit cell. In all, there are total 8 particles, 8 atoms in this. This is primitive. Number second, it is a body centered unit cell. इसमें क्या होता है? बॉडी सेंटर, शॉर्ट में इसको लिखते हैं BCC. In body centered unit cell, there are 8 particles at the 8 corner. And other than this, there is one more particle at the center of the body. Means यहाँ पे 8 कॉर्नर पे तो 8 पार्टिकल होंगे। अदर देन दैट एक और पार्टिकल होगा जो बॉडी के सेंटर में होगा। इसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नंबर सेकंड। नंबर थर्ड, that is a face centered. Face centered unit cell, in short FCC. Face center. What is face center unit cell? This is unit cell, cubic shape. In this, there are 8 particles at the 8 corner. This is always present. 8 corner पे 8 particles रहेंगे, and there are 6 more particles which are present at the center of each face. This 1, 2, 3, 4. Face का मीनिंग होता है वॉल, दीवार जो होती है। इस वॉल पे एक पार्टिकल, नीचे के वॉल पे, टॉप पे वॉल पे, और राइट साइड के वॉल पे एक एक पार्टिकल रहेगा। अब 2 वॉल और रहेंगे। एक फ्रंट की जो वॉल है, ये फ्रंट की वॉल इस पे रहेगा, और ये फ्रंट की वॉल, ये है फ्रंट। एक बैक में वॉल है ये वाली, इसमें एक पार्टिकल रहेगा। तो ऐसे टोटल 6 एक्स्ट्रा पार्टिकल रहेंगे that are present on the 6 faces. Means in all there are total 14 particles present face centered unit cell. फेस जो होती है एक वॉल होती है, एक दीवार होती है, और इसके सेंटर में एक पार्टिकल होता है। फेस सेंटर। नंबर 4, इट इज बेस सेंटर, और समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंड सेंटर। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको शॉर्ट में नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ एंड सेंटर कहेंगे। इसमें क्या होता है? देयर आर
Again, there are 8 particles which are present at the 8th corner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 2 more particles which are present at the opposite face. Any 2 opposite face. Suppose करो ऊपर का एक फेस है, यहाँ एक पार्टिकल लेंगे हम, नीचे का एक फेस है, यहाँ एक पार्टिकल लेंगे. ये दो ऑपोजिट फेस में एक एक पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा. टोटल 10 पार्टिकल्स हो गए. Such type of unit cell is called as base or end center unit cell. These are the types of unit cell. आज हमको देखना है इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं. दो बातें, एक नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल. पर यूनिट सेल देखना इनसाइड, इसके अंदर कितने पार्टिकल, नॉट आउटसाइड. सो टुडेज टॉपिक इज an important topic, that is number of particles per unit cell. पर का मीनिंग होता है इनसाइड. यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल, टोटल पार्टिकल नहीं. फर्स्ट इज सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, दैट इज एससी. इसमें अंदर कितने पार्टिकल्स है. पहले व्हाट इज सिंपल यूनिट सेल. सिंपल डायग्राम, दिस इज अ क्यूबिक सेल. इन सिंपल यूनिट सेल देयर आर 8 particles which are present at the 8 corner of the unit cell. इसमें 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल होते हैं. बट हमें देखना है नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड द यूनिट सेल. इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पार्टिकल को थोड़ा ब्रॉडर व्यू में देखेंगे. ये एटम जो होता है, पार्टिकल जो होता है, इतना स्मॉल नहीं होता है. ये पूरा बिग साइज का होता है पार्टिकल, लाइक दिस. अब इस पार्टिकल का इनसाइड में अंदर इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इसको हम शेडेड पोर्शन से बता रहे हैं, लाइक दिस. इस एटम का, इस पार्टिकल का इनसाइड में शेयरिंग कितना है. जैसे आप अगर एक बॉल लिया, फुटबॉल लिया, सपोज ये फुटबॉल है, इसको आप कट करेंगे, सिमेट्रिकल कट करेंगे, तो टोटल इस फुटबॉल के कितने पार्ट्स बन रहे हैं. अगर आप एक फुटबॉल को, एक बॉल को कट करेंगे तो टोटल इसके 8 इक्वल पार्ट्स बनेंगे. 8. अभी आपको सामने 4 दिख रहे हैं, वैसे फुटबॉल में पीछे 4 होते हैं. टोटल 8 पार्ट्स बनते हैं. दिस पार्ट, दिस आर 8 पार्ट्स. और उसमें से उसका इनसाइड कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, अंदर उसका पार्टिसिपेशन सिर्फ 1 ही रहेगा. एक ही पार्ट इनसाइड में रहेगा. टोटल देयर आर 8 पार्ट्स एंड इनसाइड इट्स कंट्रीब्यूशन इज 1. मींस टोटल जो एटम रहेगा उसका अंदर कंट्रीब्यूशन रहेगा 1/8. 1/8 पार्ट्स है, इनसाइड पार्टिसिपेशन इज 1/8. सो देयर आर टोटल कॉर्नर्स in this simple unit cell. Total corners है 8 and each corner share, हर एक कॉर्नर कितना शेयर करना है, ये 1/8 शेयर करना है. 1/8. ये कॉर्नर इनसाइड 1/8 है, ये कॉर्नर इनसाइड 1/8 है, दिस कॉर्नर 1/8, दिस कॉर्नर 1/8, दिस कॉर्नर 1/8. ईच कॉर्नर कंट्रीब्यूट इनसाइड 1/8. सभी अंदर 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है. So therefore total number of particles, total number of atoms कितने हैं. टोटल कॉर्नर है 8 और each corner शेयर कर रहा है 1/8. So total number of atom present inside is, it is 1. Only one atom is present inside. So this is important. Number of particle per unit cell. Unit cell के अंदर कितने हैं. In simple unit cell there are total 8 corners. Each corner share contribute 1/8 atom. Therefore total number of particles, total number of atoms will be 8 corner multiplied by 1/8 its sharing. 8 multiplied by 1/8, that is 1. So total number of particle per unit cell in simple unit cell, it is 1 particle or 1 atom, not 8. 8 नहीं है, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में डिफाइन किया था. What is simple unit cell, primitive unit cell? There are 8 atoms present at the 8 corner. There are 8 particles present at the 8 corner. 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल होते हैं, लेकिन इनसाइड कितने होते हैं वो इस फॉर्मूले से ऐसे हमको कैलकुलेट करना है. तो अंदर होते हैं सिर्फ एक ही पार्टिकल. इन सिंपल यूनिटी यूनिट सेल देयर इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इज 1. ऑलवेज याद रखो, कॉर्नर के कारण, ये जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर के कारण एक ही पार्टिकल अंदर होता है. दिस इज सिंपल यूनिट सेल. नाउ सेकंड वन इज
Number B, it is a body centered unit cell, BCC, body centered unit cell. Same diagram, it has, this is tube, it has 8 particles present at the 8 corner and one more particle which is present at the center of the body. बॉडी के सेंटर में 12 पार्टिकल होता है। इन ऑल टोटल देखेंगे आप, आपको 9 पार्टिकल दिख रहे हैं, 9। लेकिन हमको कैलकुलेट करना है इनसाइड कितने पार्टिकल है। तो पहले तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है कि कॉर्नर के कारण कितने पार्टिकल होते हैं, 1। ये जितने भी पार्टिकल कॉर्नर पे है, इनसाइड कंट्रीब्यूशन 1/8 रहेगा। कॉर्नर देयर आर टोटल 8 कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन इज 1/8, देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिकल इज 1। कॉर्नर पे 1 पार्टिकल है एंड बॉडी के सेंटर में, इनसाइड बॉडी के सेंटर में कितने पार्टिकल है, ये भी 1 ही है। ये पार्टिकल पूरा का पूरा अंदर बॉडी के अंदर रहेगा। अगर आप इसको ब्रॉडर व्यू में देखेंगे, इतना बड़ा पार्टिकल है तो ये बॉडी के अंदर ही रहेगा। मींस 1 पार्टिकल इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी and 1 particle is present at the corner, due to corner. So this 1 plus 1, it gives total 2. So there are 2 particles present in body centered unit cell. 1 particle due to corner, 1 particle due to present in the body. So in body centered unit cell, number of particles per unit cell, they are 2 particles of the unit cell. This is body centered unit cell. Number C, it is face centered unit cell, FCC, face centered unit cell. This, what is face centered unit cell? There are 8 atoms present at the 8 corner of the unit cell and 6 more atoms present at the center of each face. हर फेस के सेंटर में 6 more atoms रहेंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4, एक फ्रंट में रहेगा और एक बैक में रहेगा, ऐसे 6 more एटम रहेंगे। टोटल आप देखेंगे तो 14 एटम्स है, लेकिन ये हमको कहीं डिस्कस नहीं करना है। 14 एटम नहीं होते, इनसाइड देखना है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। तो पहला कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ पार्टिकल एट द कॉर्नर। कॉर्नर में कितने पार्टिकल होते हैं, देयर आर टोटल 8 कॉर्नर, ईच पार्टिकल कंट्रीब्यूशन उसका शेयरिंग होता है 1/8, देयरफॉर एट द कॉर्नर देयर इज ओनली 1 पार्टिकल। कॉर्नर पे एक ही पार्टिकल है। अब हमको देखना है ये जो पार्टिकल जो फेस पर है इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। सो पहले टोटल फेस कितने हैं इसके अंदर, इट इज 6 फेस। फिर ईच फेस कंट्रीब्यूट, ईच फेस कितना शेयरिंग करता है। फिर से आप सोचो, यहां आपने एक बॉल, फुटबॉल जैसा शेप का यहां पे एक बॉल में दीवार में लगा दिया, तो व्हाट हैपेंड, वो फुटबॉल जो है वो हाफ विल बी इनसाइड एंड हाफ विल बी आउटसाइड। वो आधा इनसाइड रहेगा और आधा जो रहेगा वो आउटसाइड में रहेगा। मींस उसका इनसाइड कंट्रीब्यूशन 1/2 रहेगा, ओनली हाफ रहेगा। हाफ पार्टिकल विल बी इनसाइड, हाफ पार्टिकल विल बी आउटसाइड। सो ईच फेज शेयर 1/2 particle inside the unit cell. Therefore, total number of particles that is present per unit cell inside, it is there is total 6 phase. Number of particles is 1/2, is sharing 1/2. Therefore, total number of particles they are 3. So number of particles present at the faces, inside the faces, it is 3. Number of particles due to corner, it is 1. इन सब को हम टोटल करेंगे। कॉर्नर के कारण 1 एटम होता है, 1 पार्टिकल इनसाइड होता है। फेस के कारण 3 पार्टिकल इनसाइड होते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 4। सो इन फेस सेंटर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल दे आर 4 एंड नॉट 14। 14 नहीं है, 4 है। इन सिंपल यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल 1, बॉडी सेंटर यूनिट सेल नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल 2 होता है। इन फेस सेंटर यूनिट सेल नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होता है, 1 2 का 4। नेक्स्ट लास्ट नंबर D, इट इज बेस centered unit cell. It is also called as end centered unit cell. Now in base centered unit cell, its definition, there are total first 8 particles present at the 8 corner of the unit cell and 2 more particles that are present at the any 2 opposite face. Suppose there is
means top face one particle and bottom face another second particle. Means in all there are total 10 particles, but they are not of importance. 10 particle importance नहीं होते, हमें देखना है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। तो एक तो इसमें कॉर्नर है और इसमें दो फेस है। तो पहले फिर से वही, ड्यू टू कॉर्नर particle present at the corner, there are total 8 corners, each corner contribute 1 by 8, therefore total number of particles at the corner is 1, corner पे एक ही particle रहेगा। Now total faces, it has total 2 faces, number of particles there are present at only 2 opposite faces, not 6 faces, then each face share 1 by 2 atom, वो 1 by 2 atom share करेगा, half inside रहेगा half outside रहेगा, therefore total number of particle it is 2 multiplied by 1 by 2, that is 1. So in base center unit cell number of particle at the faces it is only 1, so total number of particle it is 1 plus 1, 1 due to corner and 1 due to face, it is 2 number of particle per unit cell. So base center unit cell it has total 2 number of particle per unit cell. This is most important part of this unit. Unit cell में total number of particle कहीं नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है number of particle per unit cell. In this way they are calculated. Always आगे हम 1, 2, 4, 2 यही number of particle बोलेंगे। तो आज हम यहाँ स्टॉप करते हैं, आप इसको रिवाइज करो number of particle per unit cell। कल नेक्स्ट में इससे रिलेटेड हम आगे का स्टडी करें। ओके, थैंक यू।